morning students, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। और आपके सामने मैं फिर वही टॉपिक लेके आया हूँ that is called एडवर्ब। और जैसा कि जानते हैं कि ये टॉपिक जो है ना बहुत ज़्यादा वाइटल है किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग एडवर्ब एंड हाउ टू सॉल्व देम केयरफुली एंड प्रॉपर्ली विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो कल भी हम लोग का जो सेशन था ना एडवर्ब से था और आज भी हमारा जो सेशन होगा पूरा एडवर्ब पूरा इंटायर एडवर्ब्स होगा, क्योंकि एडवर्ब्स किसी भी कंपटीशन का मेन पार्ट होता है, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 1, ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट, ए हो गया फॉरगेट द प्रॉब्लम कंप्लीटली दैट वाज पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, बी इन दिस सिटी, सी और डी मींस नो एरर। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बार और देखते हैं, ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट द प्रॉब्लम कंप्लीटली that was pending for a long time in this city, so there is no error at all, the answer is absolutely correct. Now let's see question number 2, when carefully examine it will give us, तो यहाँ हमारा ए पार्ट में एरर है, इसको ऐसे हो जाएगा when examine carefully, examine पहले होगा और carefully उसके बाद में जाएगा ऐसे, when examine carefully it will give us a clue to the mystery of the case regarding this matter, so there is error at A, पहले होगा examine उसके बाद होगा carefully, when examine carefully होता है। Now let's see question number 3. Before the game she failed, A हो गया surely of winning, but यहाँ पर surely नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा before the game she failed sure होगा, sure ly नहीं होगा, ऐसे होगा before the game she failed sure of winning, but after 5 minutes she realized that it was not going to be so easy, so the answer is at B. There must not be surely, there must be C, there must be sure. Now question number 4, somebody reported to the contractor A that his partner had only, B हो गया died, B हो गया a week before, C और D means no error। तो हमारा इसमें आपका जो एरर है B पार्ट में एरर है, तो क्या हो जाएगा somebody reported to the contractor, करेक्ट है, that his partner had, यहाँ पर only नहीं होगा, only हो जाएगा कब, his partner had died a week before, ऐसे हो जाएगा आंसर। somebody reported to the contractor that his partner died और partner had died a week before, ऐसे हो जाएगा। so there is the answer at A, so there is the mistake at B, there must not be only, ऐसे हो जाएगा somebody reported to the contractor that his partner had died a week before, और कभी कभी होता है यहाँ पर week before के पहले हम लोग लगा देते हैं only a week before, लेकिन यहाँ पर हमारा किसी भी सेंटेंस में एक ही पार्ट में एरर होता है, तो हमारा यहाँ पर B पार्ट में एरर है, B में आपका only है, तो B को हम टिक मारेंगे और only को वहां से रिप्लेस करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा somebody reported to the contractor that his partner had died a week before. So let's see what are our another questions regarding adverb. चलिए देखते हैं कि अब अगला क्वेश्चन एडवर्ब से क्या बोलता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आई हार्डली एवर, ए हो गया सी हिम बिकॉज इन माय ओपिनियन, बी हो गया ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड, सी और डी मींस नो एरर। आई हार्डली एवर, ए सी हिम बिकॉज in my opinion, B हो गया he is not a man to be admired, C और D means no error, the answer is correct, there is no error at all from adverb point of view. Now question number 6, not only we lost A what we had on our proposal, B but we also lost our patience, C और D means no error। तो हमारा A पार्ट में एरर है, तो ऐसे हम सजाएंगे, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल गलत है, ऐसे हो जाएगा we not only lost, we हो जाएगा we not only lost, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा we not only lost what we had on our proposal but we also lost our patience, so there is error at A, there must not be not only we lost हो जाएगा we not only lost, we not only lost हो जाएगा। now see question number 7, who will believe that A she was not hardly, B hit by her husband's death, C और D means no error। यहाँ पर B पार्ट में हमारा एरर है, हार्डली के बदले यहाँ पर हार्ड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा who will believe that she was not hard hit by her husband's death। now question number 8, I know eventually, करेक्ट है, that he will come to me, करेक्ट है, and confess मतलब मान लेना, कबूल कर लेना, that he had committed a crime, C और D means no error। once again we know eventually और I know eventually करेक्ट है, that he will come to me ये भी करेक्ट है, and confess that he had committed a crime, C और D means no error। यानी कि क्या बोल रहा है कि मुझे पता है कि वह मेरे पास आएगा और कमिट करेगा कि उसने मिस्टेक किया था या उसने क्राइम किया था, सो देयर इज नो एरर एट ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द प्रिंस सॉ द प्रिंसेस, ए करेक्ट है,
ही क्राइड आउट दैट ही हैड, बी करेक्ट है, नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल लेडी बिफोर, सी, और डी मीन्स नो एरर. सो देयर इज नो एरर एट ऑल. द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो लेट्स सी व्हाट आर आवर अनदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग एडवर्ब. चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है एडवर्ब से. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, आई मेट नीतू अबाउट, ए हो गया, 2 years एगो, एंड हैव, बी हो गया, रिमेंबर्ड हर, एवर, फोर, सी, और डी मीन्स नो एरर. तो यहाँ पर हमारा ए सी पार्ट में एरर है, यहाँ फोर नहीं होकर हो जाएगा आपका सेंस. क्या, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात किया जा रहा है कि मैं उससे 2 साल पहले मिला था और अभी भी उसको याद करता हूँ. I met Nitu about 2 years ago and have remembered her ever since. Ever for के बदले ever since का प्रयोग होगा. So the answer is at C. There must not be for, there must be since. क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताया जा रहा है 2 years ago. Now यहाँ पर देखते हैं 11th में. The saint was sitting under the tree, यानी कि साधु महात्मा ना पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. Whom we had, whom हो जाएगा यहाँ पर, whom we had seen, जिनको हम लोग देखे थे, somewhere else in the city, और D means no error. So the answer is at D. There is no error at all. एक बार और देखते हैं. The saint was sitting under the tree whom we had seen somewhere else in the city, and D means no error. So the answer is at D. There is no error at all. Now question number 12. He never liked to treat his, A हो गया, brothers friendly. That's why he could not win their love and favor. C, और D means no error. D में आंसर है क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है एडवर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से. Now question number 13. Although he only earns, ए पार्ट में एरर है तो क्या हो जाएगा, although he earns only होगा, only जाएगा earns के बाद में, ऐसे although he earns only हो जाएगा. So there is error at A. Now question number 14. I came across her, A हो गया, in Kanpur and invited her willingly, B हो गया, to come to Patna, C, और D means no error. So there is no error at all. The answer is absolutely correct. चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि एडवर्ब से क्या बोलता है. देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि फाइनल क्वेश्चन आज का सेशन का क्या बोलता है, एडवर्ब से रिलेटेड है. सो क्वेश्चन नंबर 16. ही वाज टायर्ड ऑफ वर्क ओनली, ए पार्ट में एरर है. यहाँ पर ओनली जो है ना अननेसेसरी लगा हुआ है तो यहाँ पर ओनली का प्रयोग नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा. ही वाज टायर्ड ऑफ वर्क सो ही सेट डाउन अंडर द ट्री एंड रिलैक्स फॉर 10 minutes. सो देयर इज द आंसर एट ए. देयर मस्ट नॉट बी ओनली, देयर मस्ट बी ओनली वर्क. ही वाज टायर्ड ऑफ वर्क, वहाँ ओनली नहीं होगा क्योंकि ये बेकार में अननेसेसरी इसका यूज किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. ही इज ए लिंग्विस्ट, मतलब वो ऐसा आदमी है जो लिंग्विस्ट है, मतलब बहुत तरह का भाषा जानता है. सो ही ऑलवेज कंपेल्स हिज स्टूडेंट्स टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली, सी, और डी मीन्स नो एरर. सो द आंसर इज एट डी. देयर इज नो एरर एट ऑल. वह एक लिंग्विस्ट है इसलिए हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कंपेल करता है कि किसी भी वर्ड्स को सही ढंग से उच्चारण करो. इसका आंसर हो गया आपका डी में, मतलब कहीं भी एरर नहीं है एडवर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, ए पार्ट में करेक्ट है तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, देयर मस्ट नॉट बी एल वाई. द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड यानी कि बूढ़ा आदमी अंधा है. सो प्लीज डोंट कॉल हिम अ लायर व्हेन ही सेज दैट ही कांट रीड और ही कैन नॉट रीड. सो द आंसर इज एट ए. देयर मस्ट नॉट बी ब्लाइंडली, देयर मस्ट बी ब्लाइंड. ऐसे द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, बूढ़ा आदमी अंधा है इसलिए प्लीज उसको लायर मत बोलना जब वो बोलता है कि वह पढ़ नहीं सकता है तो. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट. दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल, यह रूम जो है बहुत सुंदर है. एंड टू मच स्मॉल, और बहुत ज़्यादा छोटा भी है. टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू प्रॉपर्ली, सी, और डी मीन्स नो एरर. यहाँ पर डी में आंसर है यानी कि देयर इज नो एरर एट ऑल. द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट फॉर टुडे. इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली, ए हो गया, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बी हो गया, इन ऑर्डर टू विन द मैच हेल्ड इन लखनऊ, सी, और डी मीन्स नो एरर. एक बार और देखते हैं. इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली यानी कि इंडिया बहुत सावधानी ढंग से खेला था. राइट फ्रॉम द बिगनिंग जो शुरू से एकदम था. इन ऑर्डर टू विन द मैच हेल्ड इन लखनऊ जो लखनऊ में हुआ था, और डी में बोलता है नो एरर. इसका आंसर एक बार और देख लेते हैं. इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली एकदम बिल्कुल करेक्ट है, कहीं भी हमारा एडवर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ भी एरर होने का चांसेस नहीं था. तो ये सब कुछ क्वेश्चंस था एडवर्ब से. शाम का सेशन में फिर आपका एडवर्ब से कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो इसको आपको आप लोग को एकदम ड्यूटी है कि एडवर्ब को अच्छा से कंप्लीट कर ले, जिसमें एडवर्ब से जो भी क्वेश्चंस आए आप लोग उसको अच्छा से अच्छा सॉल्व कर सकेंगे. और किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तब तक लिए थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू.